بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں اسلم رائی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے 115 تاریخی ناول ہیں اور بچوں پر 100 کے لگ بھگ مختلف شخصیات کی زندگی پر کتابچے بھی لکھ چکا ہوں۔ آج ہم حیرت کردہ کے نام سے نئے یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم تاریخ عالم سے چیدہ جو واقعات ہیں جو عام قاری کے ذہن میں نہیں آتے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے واقعات نہ صرف آپ کی دلچسپی کا باعث بنیں گے بلکہ یہ پڑھنے والے کے علم میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں بلکہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج ہم عثمانی ترکوں کی تاریخ کا احوال بتانا شروع کریں گے، لیکن عثمانی ترکوں کے جد اعلیٰ ارطغرل غازی سے متعلق کچھ کہنے سے قبل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ترک کون ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں پڑھنے والے کے ذہن میں ترکوں کے متعلق عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں وہ پڑھتے ہیں کہ چنگیز خان منگول تھا، پھر وہ ایک کتاب پڑھتے ہیں تاتاریوں کو یلغار، اس میں وہ چنگیز خان کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ تاتاری بھی یہی تھا۔ پھر وہ کہیں پڑھتے ہیں کہ چنگیز خان ترک تھا، اس طرح ان کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا۔ میں تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ جتنے بھی ترک ہیں جن کے نام بھی میں تھوڑی دیر تک مینشن کروں گا، ان کا جد اعلیٰ ایک شخص ترک تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ یافس کی اولاد تھی، یہ شمال کے برفستانوں، چین اور منگولیا کے آس پاس کے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ یافس کی اولاد میں سے ایک شخص ترک تھا۔ مورخین کے مطابق یہ ترک کرغیزستان کی جھیل ایسین کول کے کنارے پیدا ہوا۔ یہ جھیل اب بھی موجود ہے کرغیزستان۔ اب اس کی جو اولاد تھی وہ سارے ترک تھے۔ یہاں میں تھوڑا سا جو لوگوں کے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے وہ یہ بتا دوں کہ جتنے ترک ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، منگول اور تاتاری۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسی ترک کی نسل سے ایک شخص علنجہ خان تھا، اس کے 2 تمام بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام منگول، دوسرے کا نام تاتار تھا۔ ان دونوں کی نسل آگے بڑھتی رہی اور انہی کی نسبت سے 2 قبیلے تاتار اور منگول جو ہے وہ بنے۔ اب یہ جس طرح یہ اس وقت یہ متحدہ طور پر جو ہے یہ ٹنڈرس کے میدانوں سے لے کر سرائے گوبی تک اور جھیل بیکال کے ارد گرد جو ہے آباد اور پھیلے ہوئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب سرائے گوبی پھیلنا شروع ہوا، برف کم ہوگی، گھاس کے میدان جو ہے وہ محدود ہو گئے، تب انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے تاتاری قبائل جو تھے وہ وہاں سے نکل کر ترکستان میں آ کے آباد ہو۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ قبائل جو تھے جن کو ہم ترک کہتے ہیں، جن کو ہم منگول کہتے ہیں یا تاتاری کہتے ہیں، ان میں بے شمار قبائل ہیں، مثلا قپچاق ہیں، ایغور ہیں، خلج ہیں، کاچار ہیں، افشار ہیں، جلائر ہیں، کنکرات ہیں، سلجوق ہیں اور ایغور ہیں، کوچین ہیں
तरखान हैं, उसके अलावा सल्जूकी हैं, उस्मानी हैं, मंगोल हैं, ततारी हैं, और सफ़ेद भेड़ों वाले हैं, काली भेड़ों वाले हैं। इनके अलावा ये बहुत से, ये सारे तुर्क, ये सारे उसी तुर्क की नस्ल से हैं। ताहम ये दो हिस्सों में तकसीम हैं। जैसे मैंने गुजारिश की कि ततारी उठ के तुर्कस्तान में आबाद हो गए। ये जिन उस्मानी तुर्कों की हम तारीख अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं, ये तातारी थे, और सल्जूक भी तातारी थे। इन्हीं उस्मानी तुर्कों के बाद हम सल्जूकियों के मतलब भी आपसे तफसील के साथ जो है वो वीडियो पेश करेंगे। अब ये जब तुर्कस्तान में आबाद होते हैं तो तुर्कस्तान का हाकम उस वक्त एक शख्स बैबू था। ये अगूज, ये सल्जूकी और उस्मानी तुर्क तारीख के औराक में ओगूज भी कहलाते हैं, इसलिए कि इनका जद्दे अमजद ओगूज था। अगूज की दो बीवियां थी, और कमाल की बात है कि उन दोनों बीवियों से तीन तीन बेटे थे। पहली बीवी के जो बेटे थे तीन, वो कौन खान, आई खान और यलदेद खान। इनमें जो कौन खान था उसके बेटे का नाम काई खान था। इस काई खान की जो नस्ल चली, ये तारीख के औराक में उस्मानी तुर्क कहलाए। दूसरी बीवी के जो तीन बेटे थे, उनमें कूक खान, ता खान और तंगेज खान थे। तंगेज खान के बेटे का नाम कनक खान था। इसकी जो नस्ल चली, ये सल्जूकी थे। गोया उस्मानी तुर्क और सल्जूकी एक दूसरे के चचाजाद हैं। चुनाचे ये दोनों कबाइल, यानी सल्जूकी और उस्मानी, ये बैगू के तहत तुर्कस्तान में आबाद हुए। उस वक़्त सल्जूकियों का जो सरबराह था वो सल्जूक था, और ये बड़ा बहादुर और जंगजू था। इसके बैगू के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। चुनांचे ये तुर्कस्तान से निकला और जंद के इलाके में आबाद हो गए। चूँकि काई कबीले वाले भी इनके रिश्तेदार थे, वो भी तुर्कस्तान से निकले, लेकिन वो दरियाए आमू के शमाल में आबाद हो गए, जबकि सल्जूकी दरियाए आमू के इधर नीचे वाले हिस्से में बाएं किनारे की तरफ आबाद। सल्जूकियों ने मेहनत करके बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की, और इनकी दुनिया के अंदर 5 बड़ी सल्तनतें कायम हुई। एक सल्जूकिया ईरान, सल्जूकिया ईरान, सल्जूकिया किरमान, सल्जूकिया हल्ब शाम और सल्जूकिया अनातोलिया। इनमें बड़े बड़े शहंशाह पैदा हुए, जिनमें अर्तुगरुल बेरू हो गया, अल्प अरसलान हो गया, मलिक शाह सल्जूकी हो गया, मलिक अरूक हो गए, सुल्तान संजर हो गए। लेकिन ये जो काई कबीला था, इनकी हालत मुख्तलिफ रही। ये दरियाए आमू के शुमाल में आबाद रहे और मुख्तलिफ कबीलों में बटे रहे। हर कबीले का एक सरदार होता था, और फिर ये सारे छोटे छोटे कबीले एक बड़े सरदार के तहत काम करते थे। जब तक सल्जूकी ताकतवर रहे, यानी तातारी ताकत, मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि शुरू में तातारी मंगोलों पर गालिब थे और मंगोल इनसे डरते थे। बहुत सी जंगों में इन्हीं तातारियों ने मंगोलों को शिकस्तें दी। जब तक ये सल्जूकी तातारी ताकतवर रहे, मंगोलों को जरूरत नहीं हुई कि वो शुमाल से जनूब की तरफ आके बर्बरबादी और बर्बरियत का खेल खेलें। जब सल्जूकी कमज़ोर हो गए, तो ये जो काई कबीले थे, ये भी एक तरह के मुंतशिर थे। इन काई कबीलों में से एक कबीला, जिसका सरबराह सुलेमान शाह था, वो दरियाए आमू को अबूर करके जनूब में आया, और मरव शहर के नवाह में माहान नाम का एक बड़ा कस्बा था। वहाँ ये अपने कबीले के साथ आबाद हुआ, और ये अपने कबीले का सरबराह और सरदार बना। जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं, तो
अभी भी तक ये काई कबीले वाले छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं। इसी दौरान चूंकि सल्जूकी कमज़ोर हो चुके होते हैं, मंगोल तादाद में भी ज़्यादा हो चुके होते हैं, लिहाजा मंगोल जो हैं वो झील बेकाल से सराय गोबी को अबूर करके कोस्तान थान चान के दर्रों से होते हुए जनूब का रुख करते हैं, और खारदम शाह अलाउद्दीन और बगदाद के खलीफा दोनों की हमाकत की वजह से ये चंगेज़ खां बर्बरी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का खेल शुरू करता है। अब मंगोलों का ये तरीका कार था कि शुरू में जो आसपास के कबाइल होते थे, जो वीडियो को देखते थे कि ये जंगजू हैं और उनके पास जानवर भी बड़े हैं, उनको बड़े प्यार से अपने साथ शामिल करते थे, और उनके साथ जो जंगजू हुआ करते थे जंगू में, उनको अपने आगे रखते थे दुश्मन पर हमलावर होने के लिए, ताकि पहले वो मरें और उनसे लड़ते हुए उनके दुश्मन थक जाएं। जब ऐसा होता था तो फिर उनका असल लश्कर जो है वो थके हुए दुश्मन पर गालिब आ जाता था। ये उनका तरीकाकार था। अब सुलेमान शाह जो काई कबीले का सरदार था, उसको भी पता था कि ये जो हैं मंगोल, ये सारे कबीलों को इस तरह अपने साथ मिला के उनका एक तरह से कत्ले आम कर रहे हैं। काई कबीले के वो दूसरे कबाइल जो उस वक्त जो है दरियाए आमू के शुमाल में आबाद थे, उनमें से अक्सर जो थे वो इसी तरह चंगेज़ खां के लश्कर में शामिल हुए, और चंगेज़ खां उनके जंगजूओं को आगे रखते हुए उनकी तबाही का बायस बनता रहा। जब सुलेमान शाह को इसका इल्म हुआ, तब सुलेमान शाह ने ये इरादा किया कि उस वक़्त जबकि मंगोल उस पर हमलावर हो जाएं और ज़बरदस्ती उसे अपने लश्कर में शामिल हो जाएं, उसे उससे पहले जो है वो जो है यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। चुनांचे अपने सारे कबीले से मशवरा करने के बाद सुलेमान शाह जो है उसने अपना जो मस्कन महान छोड़ा और दरियाए आमू के किनारे किनारे उसने आज़रबाईजान का रुख किया। इसके बाद हम इंशाअल्लाह खुदावंद कुदूस को मंजूर हुआ तो अगली नशिस्त में आपके सामने अर्तुगरुल के हालात बयान करेंगे, और उसके बाद अर्तुगरुल के बाद जितने भी उस्मानियों के शहनशाह आते हैं, मसलन उस्मान खान हुए, उसके साथ ही ऊर खान हुए, दूसरे इसके बाद जितने भी सुल्तान हैं, सुलेमान हुए, सलीम हुए, इसके बाद बारी बारी तरतीब के साथ हम इन सब के जो हालात तफसील के साथ आपके सामने बयान करेंगे। और साथ ही मेरी गुजारिश ये है कि क़ारीन से कि ये सब कुछ जानने के बाद अपने तासरात का भी इज़हार दें, और इस जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है बेटे। ठीक है, एडिटिंग कर